अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान में कई सालों से एग्जिस्ट करती है, लेकिन पिछले 1.5 से 2 सालों में जो इसकी ग्रोथ आई है, उसके बाद से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये इस इंडस्ट्री का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। हम इसके साथ आज ये भी बात करेंगे जो एक आम आदमी के इस्लामिक बैंकिंग को लेकर कंसर्न्स या क्वेश्चंस होते हैं, और इसके साथ ही हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सादिक ऑफरिंग के बारे में बात करेंगे और जो उन्होंने इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम किया है, एंड ऑल्सो वो किस तरह पाकिस्तान को की मार्केट से जोड़ रहे हैं अपनी इस्लामिक बैंकिंग ऑफरिंग के थ्रू। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अज़हर असलम साहब। ही इज़ द हेड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुईज़। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अज़हर साहब, पहला सवाल, जैसे मैं इंट्रो में भी बात की, द लास्ट 18 to 24 मंथ्स एक हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ देखी है इस्लामिक बैंकिंग को लेके, बिसाइड्स व्हाट द हिस्ट्री हैज़ बीन। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है, एंड इज़ दिस द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द इंडस्ट्री? Ji Muiz, as you rightly said, the industry has been there for almost 25 years. But in the last 18 months or so, there has been a significant growth. Yani ki as of March 2026, deposits now account for 28.5% of the overall industry. Assets account for about almost 24% of the overall banking industry. And the growth has been in double digits, but last 18 months have been extremely good at the backs of customer demand and also regulatory support. So central bank has played a very significant role in this growth for the last few years. But Sharia एक शरिया की रूलिंग आई थी almost 4 years ago, फेडरल शरिया कोर्ट की, in April of 2022. तो उसके बाद से लेके अब तक सेंट्रल बैंक ने, स्कॉलर्स ने, प्रैक्टिशनर्स ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन प्रोडक्ट इनोवेशन एंड मेकिंग इस्लामिक बैंकिंग widely available to customers across segments. So that has really played a very significant role in the growth of the industry. To share some numbers for Standard Sadiq, in the last 15 months or so, since December 2024 to publish numbers for March 2026, our total assets have crossed 200 billion mark. They were around 110 billion rupees in December 2024. So almost 100 billion rupees growth in 15 months. Similarly, deposits increased by almost 60 billion rupees in the same period for Standard Chartered Sadiq only, which is in line with the growth in the industry. And we are the only international bank in Pakistan which has an Islamic banking license. And we are very proud of the fact that we are bringing Sharia compliant solutions to our customers. अभी आपने ग्रोथ की बात की, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है। इस ग्रोथ को क्या चीज़ें ड्राइव करी? और मेरा आगे सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि जिस हम ट्रैक पे चढ़ चुके हैं, विल इस्लामिक बैंकिंग बिकम द डोमिनेंट फैक्टर इन द पाकिस्तान इंटायर बैंकिंग इकोसिस्टम आगे जाते हुए? Ways it has moved from a niche to a mainstream business today. आज से 20 साल पहले जब कोई लार्ज कॉर्पोरेट ये सोचता था, या कोई बोर्ड मेंबर एक लार्ज लोकल कॉर्पोरेट का ये सोचता था कि भाई मुझे अपना बिज़नेस शरिया कंप्लाइंट करना है, तो क्या बैंकिंग सिस्टम मुझे सपोर्ट कर सकेगा, तो एक क्वेश्चन मार्क जहन में आता था बिकॉज साइज और स्केल ऑफ द बिजनेस का। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह विद ओवर 20 बैंक्स डूइंग इस्लामिक फाइनेंस इन पाकिस्तान and the size of the business that exists today, I think most clients on the wholesale bank side are very comfortable if they want to move on to this journey. Their products, there's depth in the market, and banks collectively can meet that need. और उसका proof point अगर मैं आपको बताऊं कि early this year we did a large transaction for a large local corporate, a term finance facility for Angro, which was Sharia compliant, along with IFC, which shows two things: A, how Standard Chartered can bring solutions to our clients, which are large local corporates. We all know that Angro is a big name, and not only us, but they have availed other Islamic finance facilities in the last 1 year or so from the market. So yes, it is a mainstream business today. Now your question regarding will this be a dominant player?
the jury is out, if you really ask me. It will take a little more time for this to be a dominant player, but we are on the right track. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान एज अ कंट्री, हमने बैंकिंग इकोसिस्टम की तो बात की, लेकिन पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है. ऑब्वियसली अ लॉट नीड्स टू बी डन फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपके मुताबिक इस्लामिक बैंकिंग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ जो आपका मकासद शरिया है, हाउ कैन इट कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान's growth and development? As you rightly said, Pakistan is a developing market. So we need infrastructure, we need housing, we need our SME sector to be a major player. And one of the challenges that SME sector has faced is that the sponsors in SME sector are looking for Sharia compliant solutions. So I think these three sectors, infrastructure, housing and SME, are the potential growth engines for the economy. And Maqasid-e-Sharia is, what is Maqasid-e-Sharia? Is that you contribute toward the overall economy of a market through Sharia compliant solutions. And now we are at a point where Islamic finance can contribute towards this. For example, we need road networks, we need dams, we need infrastructure for our energy sector. Then there is potential to do mining of natural resources. So short answer is yes, we can definitely do this and align ourselves for the development of the economy, and most importantly, create jobs. Okay. We have a very large population of youth who need to earn a living in a respectable way. So our youth needs to be directed in the right direction, and I think if we are able to walk this path of infrastructure development and creation of jobs through SME, we can do a lot for both the economy in a Sharia compliant way. हमने अभी बात की कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए इस्लामिक बैंकिंग क्या रोल प्ले कर सकता है. ऑब्वियसली इट हैज़ बीन देयर अराउंड अबाउट ग्लोबली, स्पेशली इन द मिडल ईस्ट सिंस द लास्ट 50 years. क्या लेसन्स वो इकोसिस्टम्स हमें देते हैं पाकिस्तान को एज एन इकोनॉमी, जो बेसिकली इकोसिस्टम्स दैट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इस्लामिक बैंकिंग? So one of the role models in Islamic finance, one of the markets is Malaysia. Malaysia में Islamic banking एक advanced stage पर है. Advanced stage से मुराद ये है that they are ahead in terms of share of Islamic banking than Pakistan today. But what they've been able to do is they've been able to institutionalize it. उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को इस्लामिक फाइनेंस की तरफ कन्वर्ट कर दिया हुआ है, और उन्होंने किया कि है कि उन्होंने लिक्विडिटी टूल्स प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने टैलेंट डेवलपमेंट पे फोकस किया है, उन्होंने रेगुलेशन ऐसी बनाई है कि इस्लामिक फाइनेंस के लिए आसान है ग्रो करना. एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन अ गुड रेगुलेटर दैट दे हैव बीन पिकिंग अप success stories from other markets, including Malaysia. So I think we can collectively make this happen, that our central bank has been, and I'm very hopeful will continue to be on this journey, where they can bring in best practices from other markets like Malaysia and help the industry grow in a Sharia compliant way. पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अभी यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फेडरल शरिया कोर्ट की जजमेंट है, उसके बाद से हमें ऐसा लग रहा है, और जो लास्ट 18-24 मंथ्स की ग्रोथ है, ऐसा लग रहा है इंक्रीजनली दैट पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ मोर शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल सिस्टम. आपके मुताबिक व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ डज अ शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर टू, एज पर से जैसे बैंक्स की बात कर लें, कॉन्ग्लोमरेट्स की बात कर लें, या कॉर्पोरेट्स या इंडस्ट्री वाइज? One big opportunity other than the sectors is the Sukuk instrument that exists under Islamic finance. So as you know, Pakistan mein the largest customer of banking industry is the government of Pakistan. And in the last, again, in 2026 only, April of 2026, after very concerted effort, तकरीबन 18 महीने स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जॉइंट फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ने मिल के काम किया, और हमें स्टेट बैंक ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनवाइट किया कि आप एक इंटरनेशनल बैंक हैं, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपनी प्रोडक्ट इनोवेशन के थ्रू हमें फैसिलिटेट करें
कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सकूक्स के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकें. अप टिल अप्रैल ऑफ 2026 हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी सकूक इशू होते थे वो 100% एसेट बैक्ड होते थे. बट एज आई सेड, हमने मिल के JFS के साथ और स्टेट बैंक के साथ हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मलेशिया से लेके आए हैं. उसका नाम बुरसा है. दे आर अ कमोडिटी प्लेटफॉर्म और उनको पाकिस्तान हम लेकर आए हैं और हाइब्रिड सकूक इशंस हुई अप्रैल 2026 में. It's been 2.5 months, but the story is very very successful. पहली दफ़ा पाकिस्तान में 12 महीने का सकूक इशू हुआ लोकल करेंसी का, और अब डिस्कशंस हो रही हैं कि इससे भी शॉर्टर टेनर के सकूक इशू किए जा सकते हैं. सो ये जो सकूक इंस्ट्रूमेंट है, ये हुकूमत पाकिस्तान को जो अपना डेट है फ्रॉम कन्वेंशनल टू इस्लामिक कन्वर्ट करने में आसानी कर रहा है, और 100% एसिड भी नहीं चाहिए. सो जो एक बहुत बड़ा डिमांड था इंडस्ट्री का कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं और डिपॉजिट जनरेट होता है तो उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, वो लिक्विडिटी कहाँ इस्तेमाल होगी, तो वो जो एक चैलेंज था वो ओवरकम हो गया है. और अब इंशाल्लाह अगले 6 महीने में जो इस साल के रह गए हैं उसमें और भी हायर वॉल्यूम्स ऑफ सकूक की इशुएंस एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें. अभी आपने बताया सकूक इज़ डीपनिंग द मार्केट इन पाकिस्तान. क्या सकूक से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी मदद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और मार्केट्स में होते हैं सकूक्स. ऐसे सकूक्स भी इशू होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फंड्स रेज करते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, और वो फंड्स डिप्लॉय होते हैं इन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल रोड, रेल नेटवर्क, डैम्स, energy projects, and Standard Chartered globally has done these transactions in other markets, and we have made presentations to the Ministry of Finance on how we can facilitate that. I think we as a country and as economy are now at a point where these projects will start taking shape in reality. उम्मीद ये है कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होनी शुरू हो रही हैं इंशाल्लाह. वो अगर सस्टेन कर जाती हैं तो पाकिस्तान कैन बी ऑन अ रोड टू इकनॉमिक डेवलपमेंट, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ स्टार्ट गेटिंग जॉब्स फॉर आवर यूथ. डीपनिंग द मार्केट की बात हो रही थी, तो क्या इस्लामिक फाइनेंस जो पाकिस्तान की, अगर हम पिछले 1.5 से 2 साल की एक और सबसे बड़ी अगर हम सक्सेस स्टोरी की बात करें तो हमारी कैपिटल मार्केट है, इक्विटी मार्केट है. क्या इसकी डीपनिंग जो जिस तरह सकूक से मार्केट डीपन हो रही है, क्या इक्विटी मार्केट में भी हम इसका एक इम्पैक्ट देख रहे हैं? जी बिल्कुल देख रहे हैं. वो इस तरह के एक प्रोसेस है टू एवेल्युएट ए कंपनी कि क्या वो शरिया कंप्लाइंट है. अगर उस प्रोसेस पे एक कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी जो की रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करे तो वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स पे आ जाती है, और फिर इन्वेस्टर इस कंफर्ट के साथ उस कंपनी का शेयर ख़रीद सकता है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो शरिया कंप्लाइंट है. Slowly and gradually the number of companies who are Sharia compliant on the Pakistan Stock Exchange has been increasing, and you may be aware of it that asset management companies जो पाकिस्तान में हैं वो predominantly Sharia compliant investments ही करती हैं. यानी कि सकूक्स के अलावा जो equity investments भी होते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो भी predominantly Sharia compliant stocks में ही होते हैं पाकिस्तान में. स्टैंडर्ड चार्टर्ड के फुटप्रिंट की बात करें, बड़ा वास्ट फुटप्रिंट है अक्रॉस मिडल ईस्ट, एशिया, एंड ऑब्वियसली अगर हम देखें तो अफ्रीका तक इसके रूट्स हैं. हाउ डज दोज रूट्स एंड दैट फुटप्रिंट हेल्प पाकिस्तानी बिजनेसेस एज वेल एज द पाकिस्तानी मार्केट टू एक्सेस जो ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है वो किस तरह दिलाता है? Standard Chartered, as you rightly said, is a global bank. We operate in more than 50 markets, including Pakistan, and we are a developing market bank. Asia, Middle East, Africa. इनमें से कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जहां हमारी सादिक की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर सादिक बिजनेस ग्लोबली. नंबर 1 मार्केट इज़ UAE and number 3 is Malaysia. And Pakistani businesses in the last year or two have started to look outwards कि जी अब उनका साइज़ और स्केल ऐसा होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कि they can set up businesses outside Pakistan. So we have clients both on the conventional Islamic side and slowly and gradually more on the Islamic side who are going to markets like UAE,
and setting up their businesses there. And we've been facilitating because we have that network. So we've been offering them cross-border solutions. We have set up their accounts in UAE for their businesses there. Here and now we are very hopeful that slowly and gradually, with this corridor developing between Saudi and Pakistan, potentially Pakistan and Malaysia, there will be more clients who would be exploring potential business opportunities in these markets. So Standard Chartered, both from being a conventional setup with their network and also our presence in key markets like Malaysia, UAE and Saudi, can help them grow their businesses there. अभी आपने सादिक की बात की. It clearly seems to be your key Sharia compliant instrument. What sets Sadik apart from other instruments? So Sadik is our brand. हमारे बैंक का जो इस्लामिक बिजनेस है उसका ब्रांड सादिक है. That's a platform that we are known for globally for Islamic banking platform. What really it brings to the table for our clients is ability to raise Sharia compliant capital, treasury solutions, cross-border solutions. So our network is very strong, and we provide solutions for both wholesale bank clients and consumer banking clients. So there are clients who, as I said earlier, who are moving to other markets and they're looking for Sharia compliant solutions. And that's where we really add value by providing them Sharia compliant solutions for either trade, FX. If they need to raise capital, we can facilitate raising of capital, and also for their growth in other markets. जिस तरह आप इस्लामिक बैंकिंग एक्सपैंड करिए, इस तरह देयर इज़ एन इंक्रीज नीड ऑफ human resources skilled to actually work in this industry. How important is to train workforce as well as जो आपकी मार्केट में जो एक नए ह्यूमन रिसोर्स एडिशन हो रहा है इन अ वे कि वो इस्लामिक बैंकिंग में डायरेक्टली जंप इन कर सकें? जो पहला सवाल था आपका, जहाँ से हमने ये डायलॉग शुरू किया था, जिस रेट पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, टैलेंट इज़ नाउ गोइंग टू बी अ क्रिटिकल ग्रोथ इनेबलर. जब तक हमारे पास ट्रेंड बैंकर्स नहीं होंगे, इस्लामिक बैंकिंग के प्रोडक्ट्स समझने वाले, शरिया को समझने वाले, हम अपने कस्टमर्स को वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफ़र नहीं कर सकेंगे जिससे उनका ये दिल का इत्मीनान भी हो कि हाँ जी मैं वाकई शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो इस सिलसिले में मैं दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. एक तो ये कि हमने बैंक में तकरीबन 2 साल पहले, अब तो 2.5 साल होने को हैं, एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लॉन्च किया अलॉन्ग विद leading schools in Pakistan and our Sharia scholars. So we have a training program across the bank, from the board of directors to the junior most officer in the bank. And everyone goes through a very robust training throughout the year, along with myself and my team members and my training resource which we hired specifically for Islamic banking. Secondly, we did not stop here. हमने कहा कि हमने अपने बैंक के अंदर ये ट्रेनिंग करा ली है, तो कोई 1 साल पहले हमने एक और कोशिश की और उस पर स्टेट बैंक ने हमें सपोर्ट भी किया, बल्कि इनकरेज किया. कहा कि जी अब आप और जाके जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और वहाँ जाके जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट करने वाले हैं और वो इस्लामिक फाइनेंस की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ जाके ट्रेनिंग सेशंस कराएं. सो वी वेंट टू हबीब यूनिवर्सिटी, वी वेंट टू कराची स्कूल ऑफ KSBL, वी वेंट टू जिन्ना यूनिवर्सिटी, जहाँ हमने ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए. और उसका मकसद ये था कि जब ये स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके निकलें तो उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इस्लामिक फाइनेंस की वैसी हो कि अगर वो अपने करियर्स आइदर विद इन द बैंकिंग सिस्टम और एज क्लाइंट्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर जाएँ तो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस्लामिक फाइनेंस की हो. Similarly, State Bank and other banks have continued in this journey as well. So I think the key point is that in the next few years, the rate at which this industry is growing, we would collectively need to continue on this journey. जहाँ हम अपने existing staff को और potential जो नया staff बैंकों में आएगा, ब्रांच एक्सपेंशन बहुत रैपिड हो रही है.
जिस तरह ब्रांच खुलती है, हर ब्रांच में कम से कम 5 से 7 लोग चाहिए होते हैं मिनिमम, और वो नए रिसोर्सेज ही होंगे जो इस्लामिक बैंकिंग में आ रहे होंगे, तो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो टैलेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टेट बैंक ने 3 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट किया हुआ है पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, जहाँ रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इस्लामिक फाइनेंस के, एंड वी हैव बीन पार्ट ऑफ दैट जर्नी एज वेल। ये तो बात होगी यूनिवर्सिटीज़ की। ऑब्वियसली जो शरिया कंप्लाइंट बोर्ड्स होते हैं उसमें स्कॉलर्स भी मौजूद होते हैं, तो इस्लामिक बैंकिंग की जितनी जो तालीम है उसका मदारिस में, स्पेशली अगर आप देखें मुफ्ती तकी उस्मानी के जो अंडर एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पे तो इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आई थिंक कोर्सेज ऑफर होते हैं। इसकी कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं फुटप्रिंट है मदारिस में लेके कि जहाँ से आपको स्पेशलाइज स्कॉलर्स मिलें टू प्लेस देम ऑन द शरिया कंप्लाइंट बोर्ड्स, बिकॉज ऑब्वियसली नॉट ऑल स्कॉलर्स कैन जस्ट सिट ऑन द बोर्ड। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया मुईज़, और इसमें मैं इसको एक डिफरेंट लेंस से आपको उसका जवाब दूंगा। जो स्कॉलर्स मदारिस से निकलते हैं ना, उनकी हार्ड कोर इस्लामिक फ़ाइनेंस की या शरिया की, इस्लामिक फाइनेंस बल्कि शरिया की अंडरस्टैंडिंग होती है। उन्होंने बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है जिससे वो एजुकेशन हासिल करके मदारिस से निकलते। जब कोई स्कॉलर बनता है, मुफ्ती बनता है, तो इट्स अ वेरी वेरी रोबस्ट ट्रेनिंग सेटअप, जहाँ वो शरिया और कुरान और हदीस के पर्सपेक्टिव में वो सारी शरिया प्रिंसिपल्स को सीखता है, समझता है। लेकिन साथ साथ बैंकिंग सिस्टम को समझना, फाइनेंस, अकाउंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बैंकिंग इज़ in addition to being Sharia compliant for Islamic, you have to understand the basic banking system. How does the finance work? How does the accounting work? How do you structure the product ताकि वो प्रोडक्ट हर लिहाज से ना सिर्फ शरिया कंप्लाइंट हो बल्कि उसकी अकाउंटिंग, उसकी गवर्नेंस, उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लाई हो रही हैं। तो वो स्कॉलर जब हमारे पास आते हैं, और इसमें भी स्टेट बैंक में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, उन्होंने इनकरेज किया है बैंकों को कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर अपने बैंक में रखें, उनकी ट्रेनिंग कराएं। तो कल ही हमारे शरिया बोर्ड की सेशन हो रहा था, वी हैड अ शरिया बोर्ड मीटिंग एट द बैंक यस्टरडे, एंड वी हैड अ डेडिकेटेड सेशन फॉर आवर शरिया स्कॉलर्स विद वन ऑफ आवर कॉलीग्स। और उसका मकसद ये था कि हम उनको शरिया के अलावा जो चीज़ें हैं बैंकिंग की, यानी कि हमने सस्टेनेबल फाइनेंस पे भी सेशन कराया है अपने शरिया स्कॉलर्स का, हमने जो मार्केट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उसमें भी ट्रेनिंग सेशंस कराए अपने शरिया स्कॉलर्स की, एंड नाउ they are very senior and very competent in understanding how banking works. So it has to be a very good mix of Sharia and banking and finance so that that scholar can help us, हम वो प्रोडक्ट लेके आएँ जो कि ना सिर्फ शरिया कंप्लाइंट हो बल्कि वो बैंकिंग और कस्टमर की नीड भी मीट करता हो, and that's very critical. तो simultaneously I've been a conventional banker but I moved on to Islamic about 20 years ago. हमने शरिया सीखी है, उन्होंने बैंकिंग सीखी है, सो दैट इज़ हाउ दिस हैज़ कम अप एज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल्स एंड स्कॉलर्स। थ्रू-आउट द कन्वर्सेशन बात ये हो रही है कि पाकिस्तान विल इवेंचुअली ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ फुली शरिया कंप्लाइंट सिस्टम, जिस तरह मलेशिया इज़ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी, यूएई भी अगर आप देख लें। व्हाट नीड्स टू बी डन अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रेगुलेशन के हवाले से हो, क्लाइंट अवेयरनेस के हवाले से हो या मार्केट के हवाले से हो, that actually ensures कि ये transition complete हो जाए? Two things, Muhi. A, this is a collective journey. When I say collective journey, it means that scholars, clients, bankers, academia, regulator, legal counsel, accountants, everybody, the entire financial ecosystem has to come together and help on this journey. So there will be debates, there will be discussions how to make this happen, but the objective is that we move on to a financial ecosystem, and not only banking. When I say financial ecosystem, I mean everything. It should be insurance companies converting to takaful. It should be the National Savings Center offering Sharia compliant solutions. It should be the government of Pakistan availing Sharia compliant solutions. And everybody has to come together and help this journey. Now, there have been questions कि जी क्या सारी इंडस्ट्री कन्वर्ट हो सकती है, क्या हम किसी तरह अपने आप को
ग्लोबल सिस्टम से अलग तो नहीं कर लेंगे? I don't think so. Because, again, if I bring in the Standard Chartered SADC platform into this, we offer Sharia compliant Nostro solutions. And there are banks who avail our Sharia compliant Nostro solutions. And we offer them not only in USD but in multiple currencies. Similarly, we did a facility for the government of Pakistan a few years ago, जो कि World Bank guarantee से backed थी. So, the point is that if we work towards a solution which is Sharia compliant and are determined to come up with a solution कि जी ये काम हमने करना है, it will take some time, but it has to be done in a way which is sustainable, with ideally all stakeholders coming together, but if not all, majority stakeholders being on the same platform and mindset. Ideally, as I said, everybody should be on the same platform, that this is possible. But with the mindset कि यार ये हमने करना है in a way which is sustainable. It may take a little longer. It may not be done in 2 years or 3 years, and it may take a little longer. And the last thing, it has to be acceptable to the client. So, for example, our position as Standard Chartered SADC is that we offer both Sharia compliant solution and a conventional solution to the client. The decision at the client end. A client कहता है जी मुझे Sharia compliant solution चाहिए, हम उसको Sharia compliant solution देते हैं, be it consumer banking or wholesale banking. But if the customer says that I've heard you, but I'm still do not want to do Sharia compliant banking or Islamic banking, the decision is with the customer and the client, because he or she is the ultimate either a corporate or a retail customer who has to avail a product or who is answerable to whatever his actions are. एक मैं आपसे अगर एक फॉरवर्ड लुकिंग क्वेश्चन पूछूं, नेक्स्ट 3 to 5 years में अगर हमें इंशाल्लाह इसी तरह की कन्वर्सेशन करने का मौका मिला, what would success look like in the next 3 to 5 years when it comes to Islamic banking in Pakistan? Success will be a very inclusive financial ecosystem in which there are products which meet customer needs and also help the economy on its developing journey, which we spoke about. It should not be limited to only a particular segment or a sector, but across the board. So it could be SME, infrastructure, wealth solutions, corporate banking. So a complete product suite, which is almost there if you ask me. But slowly and gradually, we are moving on from a segment to a mainstream business. And we are on the right track. We just have to stay steadfast and बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत तदब्बुर के साथ एक ऐसा सिस्टम लेके आना है जिस पे लोगों का इत्मीनान हो, जिस पे लोग कह सके हाँ जी हम शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग करते हैं और हमें इस बात की तसल्ली है कि हम शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग करते हैं. अगर किसी को इश्काल है, अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत पेशेंस के साथ उसको एड्रेस किया जाए और उस सॉल्यूशन को इतना प्रैक्टिकल और इतना सहल बना दिया जाए कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम पीपल आर विलिंग टू डू इट देमसेल्व्स, एंड विच दे आर. ये जो ग्रोथ हो रही है ये सिर्फ रेगुलेटरी या सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि जी वो फेडरल शरिया कोर्ट की जजमेंट आ गई है. ये इसलिए हो रही है कि लोग वाकई इस्लामिक फाइनेंस करना चाहते हैं. ऑर्गेनिक ग्रोथ है. बिल्कुल ऑर्गेनिक ग्रोथ. एक सवाल आई थिंक जो एक बड़ा आई थिंक मेरे ख्याल में आप तक रिपीटेडली आया होगा, और मास्टर्स में अगर मैं इस्लामिक बैंकिंग की बात करूं ओपनली, एक सवाल ये आता है कि जी इस्लामिक बैंकिंग तो एक रीब्रांडिंग है कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के बारे में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लोगों का सवाल आता है, बिल्कुल आता है, आप सही कह रहे हैं. उसमें मैं एक बड़ा सिंपल जो मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ, जिससे मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि जी शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग is primarily products and structures and solutions which are approved by the Sharia board. There's certain process flow, there's certain documentation that has to be followed, which is materially different from the conventional documentation and process. तो जो स्टेक होल्डर्स की मैंने बात की थी, सब स्टेक होल्डर्स मिल के एक प्रोसेस और एक डॉक्यूमेंटेशन को अप्रूव करते हैं, और अल्टीमेट अप्रूवल अथॉरिटी इज़ द शरिया बोर्ड एट एनी बैंक.
And that Sharia board appointment is also subject to the central bank process. Sharia governance framework है, वो Sharia governance framework में एक set of rules and regulations हैं जिसको फॉलो करके ही कोई बैंक पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग कर सकता है. तो अगर एक शरिया बोर्ड किसी भी बैंक का, और शरिया बोर्ड पे जय्यद उलमा होते हैं, मतलब every scholar cannot be on the Sharia board of a bank. He or she has to have certain credentials. अगर वो अपनी एक्सपीरियंस और अपनी सवाबदीद में एक चीज़ अप्रूव करते हैं तो बैंकर्स और क्लाइंट्स किसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस प्रोसेस फ्लो को कंप्लाई करें, उसको फॉलो करें. तो फिर ये डेफिनेटली डिफरेंट भी है और शरिया कंप्लाइंट भी है. और अगर कोई ट्रांजैक्शन उस प्रोसेस फ्लो और उस डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लाई नहीं करती तो वो चैरिटी में जाती है. दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल इस्लामिक. कन्वेंशनल बैंकिंग में अगर आपकी ट्रांजैक्शन ओवरड्यू चली जाती है तो वो इनकम क्लाइंट बैंक के पीएनएल में जाती है. इस्लामिक बैंकिंग की कोई ट्रांजैक्शन अगर ओवरड्यू में चली जाती है तो वो इनकम आप पीएनएल में नहीं लेके जा सकते. दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल इस्लामिक. सो आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जी एक प्रोसेस फ्लो है, एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसको आप कंप्लाई करेंगे तो आप शरिया कंप्लाइंट हैं. और ये कौन अप्रूव कर रहा है? जिसके पास ये अथॉरिटी और ये अंडरस्टैंडिंग है अप्रूव करने की. एंड दैट्स रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक. एंड लास्ट पॉइंट, आई थिंक यू विल प्रॉब्ली एग्री दैट वी इन पाकिस्तान the most regulated industry is the banking industry, and we have a very, very forward-looking and a good regulator, which has helped us through not only Islamic, but अगर आप पिछले 4-5 साल की जर्नी देखें, the way the central bank has navigated through very tough financial economic system times, I think all credit goes to the central bank that they have done very well, and so have they done very well, and they have included Islamic finance to be part of their Vision 2028. For inclusive financial system, for a Sharia compliant financial system, and I think we are on the right track. Aziz Saab, it has been a pleasure talking to you. Before closing it, one final message that you would have for investors, for individuals, businesses के लिए या policy makers के लिए पाकिस्तान के Islamic banking in Pakistan के future के बारे में. So, Miz, I would like to say this, that Islamic finance is not only a compliance transition for Pakistan. It is a journey towards building a more inclusive financial ecosystem which helps us grow in a economy which is creating jobs for our youth, and also a development oriented financial economic system with ultimate target of hopefully in the next few years or so of moving towards a more equitable wealth distribution system also in Pakistan. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me.